Hello, welcome to class 9. How are you all? I hope all of you are in good situation. Dear students, today physics class is today. So under the physics, today we will discuss about the Newton laws of motions. In my previous video, we have discussed about the balanced force and unbalanced force and the types of force, and we also have defined the terms force. And we are now in situation to identify the types of force and the kinds of force. So dear students, you have to know here that is the Newton, who is the great scientist, Sir Isaac Newton, given 3 laws of motions. Newton has given 3 laws of motions which can describe the entire property of force. Yani Newton tries to describe the property of force and the relation of force and the combination of the force, and the perfect definition can be found in laws of motions. And therefore let us start about the terms force. So dear students, let us start the first laws of motions. Newton has given 3 laws of motion: Newton's first laws of motions, Newton's second laws of motion, and third laws of motions. Now we will describe about that Newton's first laws of motions in the physics chapters. Today, as you know, that chapter 2 is running, force and laws of motions. So we have described about the terms force, and now we will discuss about the laws of motions. Laws of motions means न्यूटन के 3 laws of motions हैं. ठीक है, न्यूटन के 3 नियम हैं. तो we will describe in detail about the laws of motions. So Newton's laws of motion is also known as the Galileo's laws of motions, Galileo's laws of motions, and this law is also known as the law of inertia. Law of inertia. It is also known as the law of inertia, and we will describe about the terms inertia, कि inertia क्या होती है. ठीक है. So dear students, let us discuss the first laws of motion. Newton's first laws of motion क्या कहता है, स्टेटमेंट्स क्या है, देख लेते हैं. तो न्यूटन का पहला नियम में स्टेटमेंट्स ये आपका आता है, a body at rest will remain at rest. कोई बॉडी है जो रेस्ट में है. रेस्ट वर्ड आप समझ रहे होगे, रेस्ट क्या होता है. रेस्ट मतलब रुकी हुई है, विराम अवस्था में. ठीक है. अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, रेस्ट में ही रहेगी, रुकी रहना चाहेगी. एंड दूसरी कंडीशन है, एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन. अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी. इन ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड से अगर वो जा रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही रहना चाहेगी, मोशन स्ट्रेट लाइन में करेगी. बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी. अनलेस, जब तक इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी कोई फोर्स ना लगाएं. बाहरी फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, चेंज करने के लिए, टू चेंज इट्स स्टेट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी उसके यूनिफॉर्म मोशन को या रेस्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए जो हमको एक्सटर्नल बाहर से फोर्स लगाना पड़ता है, उस फोर्स की वजह से बॉडी अपने स्टेट्स को चेंज करती है. यानी इट इज नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स टू बी इन सेम पोजीशन. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जिस पोजीशन में है उसी में बना रहना चाहता है. जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं टेबल में रख दूंगा, ठीक है, टेबल में रख दूंगा तो ये मार्कर, सपोज दैट जिसे ये टेबल में मैंने रख दिया, ठीक है, तो ये मार्कर टेबल में रखा रहेगा, ये हमेशा रखा रहेगा. until we apply the force by using our hand, muscular force, direct contact force, to lift up these markers, to change the position of states, and we have to apply the external force. So what is the external force? The external force is applied here by using our hands. जैसे बुक को आप टेबल में रख दीजिए. if book is lying on the tables, so it will remain in the tables. The state position of the book will always remain in the on the upper surface of the table until we apply the external force. या compelled का मतलब यहाँ पे मजबूर करना होता है. जैसे हम किसी भी फोर्स लगाएं तो वो मजबूर हो जाए चेंज करने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं हाँ. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही बताता है. अब इसमें आपको एक वर्ड समझना होता है, क्योंकि इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है. ठीक है. डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन ट्राइज टू एक्सप्लेन द नेचुरल फेनोमेना विच वे आर टेकिंग प्लेस इन लास्ट ईयर, एंशिएंट टाइम. पीपल डिडंट नो why this types of accident is taking place.
नो एनी परफेक्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशंस या एक्सप्लेनेशंस हैव बीन गिवन टू एक्सप्लेन द नेचुरल फिनोमेना विच आर टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग्स। यानी बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो लोग उसको जानते थे लेकिन उसका कारण क्या होता है नहीं जानते हैं। जैसे आप बस में बैठे हो, अचानक बस चल देती है तो आपको जर्क फील होता है और आप पीछे की ओर, बस चल देती है तो आप बस जैसे ही चलती है आप पीछे की ओर मूव कर लेते हो, आपका पूरा पोस्चर्स क्या होता है पीछे की ओर जाता है। ठीक है, तो जैसे ये पर्सन यहाँ पे बैठा है, अगर इसका तो ये अगर ये बस में बैठा हुआ है तो बस ऑटोमेटिक अगर चल देती है तो ये पर्सन का जो पोस्चर्स है ये आगे की ओर, ये पीछे की ओर जाता है। ठीक है, बैकवर्ड्स, ये बैकवर्ड्स मूव करता है। ठीक है, आप कभी बस में बैठे हो, अचानक चल देती है, कार में भी, तो आप देखते हो कि आपका पोस्चर्स पीछे जाता है। दिस पोस्चर्स गोज बैक इन बैकवर्ड डायरेक्शंस, दिस इज द बैक। ठीक, या ऑटोमेटिक ब्रेक लगाता है, अप्लाइज द ब्रेक, देन यू मूव्स फॉरवर्ड डायरेक्शंस। ठीक है, या चलती कार से अगर हम लोग गिरते हैं, कूदते हैं तो भी पीछे की ओर गिरते हैं। तो दिस टाइप्स ऑफ नेचुरल फेनोमेना, दिस टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स, you are familiar with all these types of accidents which are taking place near about you. So dear students, एक वर्ड इसमें आता है इनर्शिया। इसको अच्छे से समझ लेना है कि इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, इनर्शिया समझेंगे तो फर्स्ट लॉ हमको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, इनर्शिया नहीं समझेंगे तो हमको फर्स्ट लॉ अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आप एक कह सकते हो कि भाई अगर हमने बुक में जैसे आपका ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर को आपने रख दिया कहीं। ठीक है, जैसे मैंने इस मार्कर को ब्लैक बोर्ड के ऊपर रख दिया। ठीक है, ब्लैक बोर्ड टांगा हुआ है। अब कल मैं पढ़ाने आऊँ, ठीक है, कल मैं पढ़ाने आता हूँ आपको, तो फिर मैं देखूँ कि मार्कर मुझे यहाँ ना मिले। ठीक है, ये मार्कर मुझे ना मिले, ये रोड में जा कर के कहीं चला जाए। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि ये मार्कर अपने आप यहाँ से हट के रोड पे चला जाए? ठीक है, दिस कैन नॉट हैपन्स बिकॉज this can not take place, this situation, because marker has not any walking situation, locomotions, it has inertia. ठीक है, ये निष्क्रिय है। इनर्शिया का मतलब होता है इनर्ट। ठीक है, इनर्ट होना। जैसे आपने पढ़ा इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस का मतलब होता है ऐसी गैसेस जो किसी से रिएक्ट ना करें। तो यहाँ पे इनर्शिया का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ है वो निष्क्रिय है। ठीक है, इनर्ट, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, जैसे ये इनर्ट चीज़ है। तो अब ये क्या है भाई, आप ये जैसे इसको आप रख दोगे वैसे रहेगा, एक्टिव तो है नहीं कि अपने आप चला जाएगा। ये इनर्शिया इसमें आई कहाँ से? ये इनर्शिया इस बॉडी में आई कहाँ से? द इनर्शिया कम्स फ्रॉम इनर्शिया, इसमें इनर्शिया आई कहाँ से? किससे रियलाइज हो रहा है कि इनर्शिया आई कहाँ से? तो ये इनर्शिया जनरेट कहाँ से हुई? Inertia is associated with the words mass. ठीक है, mass. I have already described what is mass. mass क्या होता है? mass के बारे में डिस्क्राइब किया मैंने आपको कि mass क्या होता है। भाई mass किसी भी ऑब्जेक्ट का है तो उसका तो एक mass होगा। ठीक है, mass is the content of particles या objects या matters, content of materials through which it is object made. तो content of materials which opposes द चेंज इन इट, यानी कि कोई मास, किसी बॉडी में मास है तो वो दो काम करती है। एक तो इनर्शिया मेंटेन रखेगी, जिस बॉडी में मास है उसमें इनर्शिया श्योर होगी। ठीक है, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं ऐसे प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मार्कर को थोड़ा सा कम कर पा रहा हूँ क्योंकि इसका मास हैवी है। मैंने ये पेन लेता हूँ। ठीक है, इस पेन के कंपेयर में देखिए मार्कर का मास ज़्यादा है, पेन का कम है। ठीक है, तो पेन का मास थोड़ा सा कम है इन कंपेरिजन टू मार्कर। अब पेन को मैं ऐसे पकड़ता हूँ, ऐसे फोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे, फिर ये ऐसे, लेकिन जैसे मैं इसको फोल्ड करता हूँ, ऐसे मूव करता हूँ एक्सटर्नल फोर्स लगा के, लेकिन जैसे ही छोड़ता हूँ कुछ देर बाद ये फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। तो मास का दो काम है। एक तो जैसे ये हैवी, इसके कंपेयर में इसका हैवी मास था तो ये आसानी से नहीं हो रहा है, ये ज़्यादा अपोज कर रहा है चेंज का। मास का काम क्या है कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अगर लगेगा तो मास का दो काम है। एक तो अपनी पोजीशन को बनाए रखना, आप कितना भी फोर्स लगाओ ये उसका अपोज करेगा, विरोध करेगा। और आपका फोर्स अगर ज़्यादा लग रहा है इन कंपेरिजन टू अपोजिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स, देन इट विल बी, इट कैन बी चेंज्ड, दिस कैन बी चेंज्ड, इसको बदला जा सकता है। ठीक है, तो मास का काम क्या है? अपनी पोजीशन को, सिचुएशन को चेंज करना, रोकना। ठीक है, अपोज करना। तो कंटेंट ऑफ मटेरियल्स और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से आ जाना,
दैट इज मास। ठीक है, तो मास इज द मास कौन सी क्वांटिटी है? मास इज द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इनर्शिया इज डिफाइंड एज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स, इनर्शिया ड्यू टू विच एनी ऑब्जेक्ट्स, एनी बॉडी, कोई भी बॉडी है वो इनर्शिया की वजह से रेस्ट में रह पाती है, इनर्शिया की वजह से अपनी जैसे मूवमेंट है, मूवमेंट को भी गेन कर पाती है। ठीक है, जैसे एक रबर बॉल है, एक क्रिकेट की बॉल है, किसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी? एक रबर बॉल, ठीक है, एक रबर बॉल और आपकी एक दे दे स्टील बॉल। ठीक है, स्टील बॉल और रबर बॉल में किसकी ज़्यादा इनर्शिया होगी? तो यहाँ पे आपको होगी स्टील बॉल, क्योंकि स्टील बॉल की इनर्शिया ज़्यादा है और इसका मास ज़्यादा है, इसीलिए स्टील बॉल को हम आसानी से प्रेस नहीं कर पाते हैं। जब उस पर फोर्स लगाते हैं तो इसमें अपोजिंग फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि स्टील बॉडी के पास मास ज़्यादा है। लेकिन रबर बॉल को हम लोग ऐसे ही प्रेस करते हैं तो रबर बॉल की जो पोजीशन है वो शेप स्फेरिकल होता है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यानी दिस टाइप्स ऑफ फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन केस ऑफ रबर बॉल और स्टील बॉल। लेकिन रबर बॉल को जैसे ही आप छोड़ते हो, ठीक है, वो अपने फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। यानी दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द इलास्टिसिटी। वो इलास्टिसिटी की वजह से फिर से आ जाती है। रबर बॉल को आप प्रेस किए हो, फिर छोड़ोगे, फिर से वो अपने पोजीशन पे आ जाएगी। तो आई होप कि ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द टर्म्स इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब है कि जिसमें ज़्यादा हाई इनर्शिया होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसमें वो टेंडेंसी होगी कि वो जिस स्टेट में है उसमें ज़्यादा बना रहना चाहेगा। ठीक है, ओके। जैसे आप फुटबॉल बॉल देखे हो, फुटबॉल की बॉल, ठीक है, एक फुटबॉल है, ठीक है, एक फुटबॉल ग्राउंड में पड़ा हुआ है, ठीक है, आपको उस एक फुटबॉल पड़ा हुआ है, एक स्टोन पड़ा हुआ है, स्टोन पत्थर, ठीक है, हैवी, एक स्टोन एक रबर बॉल ग्राउंड में पड़े हुए हैं। ये फुटबॉल है आपकी, ठीक है, फुटबॉल एंड स्टोन दोनों ग्राउंड में पड़े हुए हैं। आपको किक करना है, अटैक करना है इस पर। रबर बॉल पे आपने पैर से, अपने पैर का यूज करके इस पर किक किया तो ये फुटबॉल ज़्यादा दूर तक जाएगी। ठीक है, और स्टोन की बॉल जो होगी ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी। ठीक है, ये क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि स्टोन बॉल के पास मास ज़्यादा है, स्टोन के पास मास ज़्यादा है पत्थर में, और इसमें फुटबॉल इज मेड अप ऑफ द रबर, इट हैज़ लेस इनर्शिया इन कंपेरिजन टू स्टोन। ठीक है, तो इट विल अपोज द चेंज इन इट, यानी रेस्ट में है तो ये रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहेगा। इस पे आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, बट फुटबॉल बॉल कैन बी डिस्प्लेस्ड विद हाई स्पीड बाय किकिंग एंड यू कैन किक द फुटबॉल एंड फुटबॉल कैन बी सेंट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन बिकॉज ड्यू टू लो इनर्शिया। तो पहली बॉडी आती है इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया आपकी 3 प्रकार की होती है। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस नो, इनर्शिया आपकी 3 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी 3 प्रकार की इनर्शिया होती है? पहला, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहला आपका था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेस्ट की इनर्शिया कैसे समझेंगे? ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, और थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दिस इज द इम्पोर्टेंट टू नो। तीन काइंड्स की इनर्शिया होगी आपकी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इनर्शिया यू आर लुकिंग हियर। तो हम इसको एक्सपीरियंस कैसे करेंगे, हमको देखने को कहाँ मिला? तो डियर स्टूडेंट्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस, तीनों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो हमको न्यूटन फर्स्ट लॉ अच्छे से समझ में आने लगेगा। चलिए डिस्क्राइब करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मैंने अभी कहा कि आप कार के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है, ड्राइवर कार चला रहा है, आप कार के अंदर बैठे हुए हो, कार ऑटोमेटिक तुरंत ऑल ऑफ सडन चल देती है, ठीक, पिकअप करती है। तो आप कार में बैठे हुए हो, आप उसमें पोजीशन को आप संभल नहीं पाए और पीछे गिर गए। ठीक है, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारी पूरी बॉडी कार के अंदर थी। कहाँ थी? कार के अंदर है।
द होल बॉडी इज इनसाइड द कार। तो हमारी पूरी बॉडी कार के अंदर है। सपोज हमारी पूरी बॉडी कार के अंदर है, ठीक है। हम यहाँ मान लो सीट पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा अपर पोस्चर होगा यहाँ पे ये, ठीक है। तो हम कार के अंदर बैठे हुए हैं, तो हमारा जो पोजीशन है वो भी पहले रेस्ट में थी, कार भी रेस्ट में और आप भी रेस्ट में उसके अंदर बैठे हुए हो। लेकिन ये कार तो तुरंत ब्रेक लगा के ये कार तो मोशन में आ गई, ठीक है। कार तो मोशन में आ गई, लेकिन आप इसके अंदर बैठे हो, आप रेस्ट में ही रहना चाहते हो, ठीक। तो रेस्ट में रहना चाहते हो, लेकिन ये जो आपका पोस्चर है जो नीचे वाला, जैसे यहाँ तक बैठे हो, तो ये तो कार से अटैच्ड है, नीचे बैठे हुए हो, टायर और आपका टच है कार पे, तो वो तो चल देता है। लेकिन जो अपर पोस्चर है, ये द अपर हेड, इट विल फ्री बिकॉज इट इज़ नॉट बाउंडेड विथ टच इन कार। तो इसलिए हमारा जो पूरा धड़ होता है ये पीछे जाता है, ठीक है। ये पूरा ही चीज़ नहीं जाता है, ये आगे धड़ जो होता है ये पूरा पोस्चर ये पीछे जाता है। बिकॉज दिस नेचुरल फिनोमेना टेक्स प्लेस ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जैसे आप पेड़ में फल पके हुए हैं, आम है, आप उस पर गए, डाली को ब्रांचेस को पकड़ के हिला दिया, ठीक है, तो उससे मैंगो गिर गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको जैसे ही डाली को आप ब्रांचेस को हिलाना शुरू करते हो तो वो पूरी ब्रांचेस तो मोशन में हो जाती हैं, ठीक है, ऑल ब्रांचेस उसके पूरे मोशन में हो गए। लेकिन जो मैंगो हैं जो अटके हुए हैं वो क्या होते हैं, वो रेस्ट में बने रहने चाहते हैं, तो इसलिए वो अपोज नहीं कर पाते और वो गिर जाते हैं, ठीक है। बिकॉज दिस इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आई होप यू आर गेटिंग वेल इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। अब इनर्शिया ऑफ मोशंस उसी को समझ लो उल्टा। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब है, हाँ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशंस, हाँ, इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करें, ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कर लीजिए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि जैसे कार पहले से मोशन में है, अब ऑटोमेटिक रेस्ट में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा अच्छे से। सॉरी फॉर द डिस्क्राइबिंग द वर्ड्स, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड देयर, सो लेट अस डिस्कस। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि जैसे कार चल रही है अभी, ठीक है, वो रेस्ट में आएगी। तो जैसे कार चल रही होती है, ब्रेक लगता है आपका, तो पूरा आपका जो अपर पोस्चर होता है वो आगे की ओर जाता है, ठीक है, आगे की ओर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि दिस टाइप्स ऑफ फिनोमेना टेक्स प्लेस ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशंस, यू कैन एक्सप्लेन द इनर्शिया ऑफ मोशन ऑलरेडी। कभी आपने देखा है कि जैसे कार जा रही हो, स्पीड से ब्रेक लगता है या ब्रेक लगता है तो हमारा अपर पोस्चर जो होता है आगे की ओर झुक जाता है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस, ये भी आप समझ सकते हो कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है जैसे कभी कार ऐसे टर्न करती है रोड पे, यू टर्न रोड पे, ठीक है, यू टर्न रोड पे कार जब मूव करती है, ऐसे यू टर्न रोड पे कार मूव ऐसे कर रही है, तो आप उस पर बैठा हुआ व्यक्ति गेट पे, अगर वो सीट बेल्ट नहीं लगाया, गेट खुला हुआ होता है, तो देखते हो कि वो बाहर की ओर गिर जाता है, ठीक है, क्योंकि दिस इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस। तो इफ वी कंबाइन ऑल थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया, then we can understand clearly Newton first laws of motions, because Newton first laws of motion is related to the law of inertia and it is also called Galileo's laws of motion। चलिए, तो फर्स्ट laws of motion आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट को ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये ग्लास है, ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज ग्लास, ठीक है, दिस इज द ग्लास। ग्लास के ऊपर मैंने एक सीट रखा है, ये सीट रखा हुआ है, ठीक है, इस पर मैंने एक कॉइन रख दिया है, ठीक, एक कॉइन रखा है, ये इसको स्टैंड में ग्लास रखी हुई है उस पर टेबल पे, तो ये टेबल पे ग्लास रखी हुई है, इसमें मैंने एक कॉइन रखा है, इसमें वाटर है, ठीक है। ये आप देखे होंगे कि जब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हुए, ये प्लास्टिक का गत्ता है या कॉर्क या प्लास्टिक कवर, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो, ठीक है, तो ये पूरा जो ये वुड पेपर है, या कह सकते हैं कि पेपर, सीट पेपर, ये सीट पेपर है, तो ये सीट पेपर तो मोशन में आ जाता है क्लिक करने पे ऐसे, ठीक है, लेकिन ये जो कॉइन है
क्वाइन तो पहले तो सब कुछ रेस्ट में है, ये भी शीट पेपर रेस्ट में है एंड क्वाइन इज आल्सो इन रेस्ट। लेकिन जैसे ही आप क्लिक करते हो ये पूरा शीट जो है ये मोशन में आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये रेस्ट में ही रहना चाहता है क्वाइंस, इसलिए इस पर तो मैंने क्लिक किया ही नहीं था, मैं तो शीट पेपर पे क्लिक करता हूँ, तो इसलिए क्वाइन इस वाटर में गिर जाता है, ठीक है, क्वाइन वाटर में गिर जाता है। दिस इज द इनर्सी ऑफ रेस्ट बिकॉज इट इज द इनर्सी ऑफ रेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये रुका हुआ है, तो दिस इज द इनर्सी ऑफ रेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्क्राइब्ड द न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशंस एंड देयर इज अनदर टॉपिक हियर इज द मोमेंटम, ठीक है, विच यू हैव टू नो हियर, मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम एक वर्ड आता है मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है? आई होप यू हैव लर्न दिस टाइप्स ऑफ वर्ड्स। मोमेंटम, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट वर्ड में आप हमेशा सुने हुए होंगे गुड मोमेंटम, ठीक है, राइट मोमेंटम। तो मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम इज डिस्क्राइब द पी सिंबल, मोमेंटम P इक्वल टू mv, यानी कह सकते हैं मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब यहाँ पे ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, दिस सिंबल इज नोन एज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं तो हमको एक कांस्टेंट मिलता है। जब इक्वल लिखना होता है ऐसे, तो इसको रिमूव करके इक्वल लिखेंगे इसको, तो एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है, तो वो कांस्टेंट आ जाता है m, क्योंकि m जो होता है मास, वो किसी भी बॉडी का कांस्टेंट होता है, बिकॉज मास इज द कांस्टेंट ऑफ एनी बॉडी, ये चेंज नहीं होता है। बट ग्रेविटी आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे, एक वर्ड आता है ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से वेट जो होता है, वेट वेरिएबल है, वेट कैन वेरी बट मास कैन नॉट वेरी, मास कैन नॉट चेंज बट वेट कैन चेंज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हम कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी में अगर मास है, उसमें वेलोसिटी है, तो उसमें मोमेंटम है, ठीक है। मोमेंटम इज जस्ट कंसीडर्ड अ फोर्स, ठीक है। मोमेंटम वर्ड इज कंसीडर्ड एज अ फोर्स। सेकंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ोगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि जो मास है अगर उस वेलोसिटी, किसी भी बॉडी में वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है, वेलोसिटी ज़्यादा है, हाई वेलोसिटी है, तो हम कह सकते हैं कि उस बॉडी में मास मोमेंटम ज़्यादा है, ठीक है। जैसे क्रिकेट बॉल आपने देखा हाई स्पीड से जा रही है क्रिकेट बॉल में, तो आपने देखा है उसमें हाई मोमेंटम होता है। अगर आप उसको तुरंत रोकने की कोशिश करते हो तो यू कैन फील हर्ट, यू कैन गेट हर्ट्स एंड यू कैन फील अ शॉक एंड यू कैन बी इंजर्ड देयर। तो इंजरीज, लॉट ऑफ इंजरीज कैन टेक प्लेस देयर if you directly hit catch, if you want to stop the high moving ball directly by using your hand, then you can feel a lot of danger. So by how can you overcome this types of burden? So momentum is the describing words, all moving bodies possess momentum. जितने भी बॉडी है, मूविंग बॉडी will possess momentum, will contain momentum. तो मोमेंटम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स इनसाइड द बॉडी, और किसी भी बॉडी का टोटल मोमेंटम जो होता है वो फिक्स होता है। जैसे कोई बॉडी स्टॉप है, रुकी हुई है, ठीक है, स्टॉप है, रुकी हुई, रेस्ट है, रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। जैसे बुलेट गन, ठीक है, गन में आपने देखा होगा कि अगर गन में आप देखोगे तो गन में जब ट्रिगर होता है तो ये गन में आप देखोगे कि पहले जो बुलेट भरे हो, यहाँ पे बुलेट और गन दोनों ही क्या होते हैं, स्टेशनरी रेस्ट पोजीशन पे होते हैं। जैसे ही आप इसके ट्रिगर को दबाते हो तो गोली हाई स्पीड से जाती है, तो आप देखोगे कि पहले मोमेंटम दोनों का कितना होगा। तो पहले मोमेंटम जो होगा गोली का वो तो रेस्ट में है, और यहाँ वेलोसिटी अगर जीरो हो गई, रेस्ट मतलब जीरो वेलोसिटी, तो टोटल प्रोडक्ट मास तो रहेगा ही, लेकिन वेलोसिटी जीरो होने का मतलब जो टोटल मल्टीप्लाई क्या हो गया, जीरो। तो m इंटू जीरो करोगे तो क्या आएगा, जीरो। तो टोटल मोमेंटम क्या है, जीरो, ओके, मोमेंटम मीनिंग जीरो। तो अगर बॉडी मोशन नहीं कर रही है तो उसका टोटल मोमेंटम कितना होगा, जीरो। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों ही हमेशा इक्वल होते हैं। तो मोमेंटम इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। P इक्वल टू mv, P इक्वल टू mv, P इक्वल टू mv। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है। यूनिट की बात करें अगर, मोमेंटम की यूनिट क्या होगी, तो मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम,
वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट क्या निकल के आई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसको और से लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यू कैन राइट लाइक दैट, ओके, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यू कैन राइट दिस वे या दिस वे, ठीक है। तो ये यूनिट किसी हुई, मोमेंटम की। दूसरी बात आती है कि मोमेंटम हमारा वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको कैसे वेरीफाई करोगे? मास क्या है, स्केलर, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। तो वेक्टर और स्केलर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, वेक्टर। तो मोमेंटम ये जो हमारा है ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और वैसे भी कह सकते हैं कि ये मोमेंटम जो होता है जस्ट काइंड ऑफ फोर्स ही होता है, ठीक है, फोर्स ही होता है ये। तो फोर्स है तो फोर्स तो हमारा वेक्टर है, ठीक है। तो वेक्टर है तो सेम क्वांटिटी है, तो यहाँ जो मोमेंटम होगा ये भी वेक्टर होगा। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इफ द बॉडी हैज हाई वेलोसिटीज देन इट विल हैज द हाई मोमेंटम, ठीक है। तो all moving bodies possess momentum, that is the clear. So we have described about the terms momentum.